Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. You all in our today's lecture. This is lecture number 4 of chapter of science, that is chapter number 1, matter in our surrounding. Before starting the today's lecture, let's talk about the what we have done in our previous lecture. In our previous lecture we have started the in-text exercise, which is there on page number 6. In that we have completed the 2 questions. Now today we are going to start from the question number 3, which is give reason part. Okay, for that you just take up your textbook, chapter 1, page number 6. In that you can see question number 3 is all give reason part. Okay, in that question number 1 we are talking about, that is a gas fills completely the vessel in which it is kept. Okay, what he wants to say, if we fill a gas in a vessel, it will occupy the each and every part of that vessel. So why is it so? ऐसा क्यों होता है? So if we talk about the gas, you know that gaseous particles have very more intermolecular space between them. Gaseous particles move freely. Why? Because the force of attraction in gaseous particle is weak, is the weakest of all state of matter. यानी जो gaseous particle होते हैं उनके particles के बीच का जो force of attraction है, it's very very weak. Because of that, all those gaseous particles can move freely in all the direction equally. That we have learned in the properties of gaseous matter. Okay. Due to that, what happen, whenever we fill any gas in a vessel, its particles occupy all the space which is there in the vessel. Okay, is it so? That's why we can say that gaseous particle fills completely when it is kept in a vessel. Okay, now question number B. Second question, a gas exerts pressure on the walls of the container. अब second question क्या है? It's related to first one only. In first he says that if we fill a gas in a vessel, it will occupy each and every part of that vessel. Why? Because gaseous particles are very free to move in any direction due to weak force of attraction. Due to that, what happens, when they move in all the direction freely, sometimes they get collide with each other. Sometimes they get collide with each other, and also they collide with the walls of the container. जो भी walls है उससे भी वो टकरा जाते हैं. Means what he wants to say कि when we fill any gas in a container, due to free motion, due to free movement of the gaseous particles, they collide with each other as well as with the wall, of the container, and in that, when they collide with the wall of the container, they exert the pressure on that wall. So that is the answer. Okay, when you fill any gas in a container, due to free movement of the gaseous particle, they collide with the wall of the container, and thus they exert the pressure on that wall. Okay, now next is give reason number 3, third, that is C. A wooden table should be called a solid. ठीक है, अगर कोई wooden table है, if you have some wooden table in at your home, can you call that wooden table a solid one? क्या किसी भी wooden table को solid matter बोल सकते हो? Yes. Why? Because that wooden table is a solid state of matter. If we talk about wooden table, it's a solid state of matter, and all solid state of matter have definite shape and definite volume. Okay, because before telling any matter as a solid, किसी भी मैटर को सॉलिड बोलने से पहले उसके पास क्या होना चाहिए? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वुडन टेबल, है ना, इफ वी टॉक अबाउट द वुडन टेबल, उसके पास भी तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम है. सो एनी सॉलिड व्हिच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दैट स्टेट ऑफ मैटर इज नथिंग बट अ सॉलिड. So in that way, our wooden table also has definite shape and definite volume. That's why wooden table is a solid matter. Okay. Then next question is, we can easily move our hand in air
We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. Okay, now in that question what he wants to say is कि जब हम किसी सॉलिड वुड की बात करें, ठीक है, उसमें से हम हमारा जो हैंड है उसे हम इजीली मूव नहीं कर सकते, बट वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर. नाउ दिस इज द एयर, ठीक है. अब यहाँ इस रूम में क्या है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ क्या है, वहाँ बहुत सारी एयर है. नाउ सी, आप अपना हाथ रेज करके इस तरह से मूव करो उसे, ठीक है. यू कैन वेरी इजीली एंड विद ईज यू कैन मूव योर हैंड इन एनी डायरेक्शन यू वांट टू, बट द सेम थिंग, is it possible to do the same thing with this wooden board? इस wooden board के साथ मुझे वो सेम चीज करने आएगी क्या? मैं इस wooden board के दूसरी तरफ अपना हाथ लेके जा सकता हूँ? Can I move my hand very freely on this wooden table either side? Is it possible for me? No. Why? Because when we talk about the wooden table, particles of wood are solid, है ना? Wooden table is a solid matter. So what we have learned कि particles of solid have least intermolecular space. वुडन पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच का जो स्पेस है बहुत बहुत कम है. सो ऑब्वियस हम उसके अंदर अपना हैंड डिग या मूव नहीं कर सकते. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एयर, मींस दिस थिंग, ओके, द गैसियस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना. जब हम एयर की बात करें तो उसके मैटर कैसे हैं? गैसियस है. In gaseous state of matter, all the particles have the highest intermolecular space. Gaseous particles के बीच में जो intermolecular space होती है वो highest होती है. That's why we can easily move our hand in any direction. हम easily हर direction में हमारा hand move कर सकते हैं. But when we want to do the same thing on this wooden board on either side, it is not possible. Why? Because solid wooden particles have least intermolecular space between them. So समझ में आ गया what I want to say? So that was the answer for that. Now that's all for in-text exercise which is there on page number 6. We have covered all the question. Now we are going to start the new topic. Okay, for that let me rub this first. Our today's topic is, can we change state of matter? Okay, can we change a state of matter? हम किसी भी state of matter को change कर सकते हैं. Now you know what is state of matter. Now you are familiar with this word, state of matter. There are three types, that is solid, liquid and gas. Now what question they are asking you is, क्या हम इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये पूछने की कोशिश कर रहा है. Is it possible for me to change any state of matter into another one? ठीक है, क्या मैं सॉलिड को लिक्विड बना सकता हूँ, लिक्विड को गैस बना सकता हूँ? Is it possible for me? That is the question they are asking us. So answer is yes. Answer is yes. Yes, we can change the state of matter. हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ, हम कैसे करेंगे, है ना. दैट इज द क्वेश्चन. फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टू थिंग्स, दैट इज फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड द सेकंड थिंग इज प्रेशर. ओके, yes, we can change the state of matter with the help of these two quantities, but you have to keep in your mind that both these quantity are totally opposite to each other. That means जब आप किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, so by default आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा. You can't change pressure at that time, because if you are changing the temperature, your pressure has to be constant. Simultaneously, if you are changing the pressure, then you have to keep your temperature constant. So in simple way I want to say कि we can change the state of matter with the help of these two quantities. But what you have to keep in your mind is, if you are changing the temperature, you have to keep your pressure constant. If you are changing your pressure, you have to keep your temperature constant.
You can't change both the quantity simultaneously. It is not possible at the same time. At the same time you can't change temperature and pressure. It is not possible at all. If you want to change the state of matter, either you have to change the temperature for which your pressure is constant, or you can change the pressure for which your temperature is going to be constant. Okay, अब ये कैसे किया जाएगा? Let's see that. सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं. We will talk about the temperature first. ठीक है? So our first topic is temperature. Okay, so solid to liquid to gas. ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं. कैसे? By increasing temperature. Okay, that means we can change a state of matter from solid to liquid and from liquid to gas by increasing the temperature. आप किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करोगे तो आप उस सिस्टम को सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस चेंज और कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड टू लिक्विड. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर हाउ वी विल कन्वर्ट अ सॉलिड मैटर, ठीक है, अ सॉलिड मैटर इनटू अ लिक्विड मैटर. ओके, बट आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप टेम्परेचर की मदद से कन्वर्शन कर रहे हो, यू हैव टू कीप योर प्रेशर कांस्टेंट. आपको आपका प्रेशर कांस्टेंटली रखना पड़ेगा. दैट मींस व्हाटएवर द टॉपिक ऑफ टेम्परेचर वी आर डूइंग फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट फॉर द होल प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर योर प्रेशर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. आप अपने प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते. यानी हम सिर्फ टेम्परेचर को ही चेंज कर रहे हैं, और टेम्परेचर को चेंज करते हुए हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया है. वो कितना भी हो, 1 एटमॉस्फेयर हो, 2 एटमॉस्फेयर हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है. वो जो भी है वो फिक्स है. अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट चेंजिंग आवर टेम्परेचर. और हमारा फर्स्ट केस क्या है? सॉलिड टू लिक्विड. ओके, तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज डन बाय मेल्टिंग पॉइंट. That is done with the help of melting point. ठीक है, that means आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो जब आप टेम्परेचर कितना दो? मेल्टिंग पॉइंट जितना. अगर आप किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो, इफ यू प्रोवाइड टू दैट सॉलिड टेम्परेचर इक्वल टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, within no time that solid will get completely converted into liquid. जैसे आप किसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर दे दोगे, वो सॉलिड उसी टाइम टोटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में. ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट. अब डेफिनेशन आएगी ना कि मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है. सो इट्स वेरी सिंपल. द टेम्परेचर एट व्हिच योर सॉलिड मेल्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगेन आई एम रिपीटिंग, द टेम्परेचर एट व्हिच your solid melt at atmospheric pressure is known as melting point. यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं? जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, जो हमेशा 1 एटमॉस्फेयर होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज होता नहीं है. ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, उसका जो प्रेशर है इट इज कांस्टेंट, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर. सो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जैसे ही आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो एट दैट टाइम जो भी टेम्परेचर होगा, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड. और आपको ये भी याद रखना है कि ऑल सॉलिड्स डोंट हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट. सारे सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता. हर एक सॉलिड का अपना अलग से मेल्टिंग पॉइंट होता है. डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स. ठीक है, सारे सॉलिड्स के लिए एक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, वो अलग अलग ही होता है, डिफरेंट ही होता है. ओके, यू गॉट द पॉइंट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट व्हिच योर सॉलिड मेल्ट at atmospheric pressure is known as melting point. Okay, with the help of melting point you can convert solid into a liquid.
ठीक है, पता चल गया। ओके, फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है सॉलिड आइस इनटू वाटर। सो दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक सॉलिड आइस को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, वाटर में, जिसमें सॉलिड आइस क्या है, इट्स अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड वाटर इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। सो यू आर कन्वर्टिंग बोथ ऑफ देम। लेकिन ये कब होता है, दिस टेक प्लेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। This take place at 0 degree Celsius. That means 0 degree Celsius is melting point. या melting point of ice. पता चल गया? What I am saying कि you can convert the ice into a water. लेकिन वो कब होगा? At 0 degree Celsius. कब होगा? At 0 degree Celsius. So 0 degree Celsius is the melting point of ice. ठीक है? अब देखो एक चीज बहुत सोचने जैसी है, क्या फॉर एग्जांपल मैं किसी आइस को टेम्परेचर दे रहा हूं उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? तो इनिशियली क्या होगा, मेरा टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा और जैसे वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, ठीक है, फिर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। कब तक? जब तक कंप्लीटली जितनी भी मैंने आइस ली है सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, वो उसके ऊपर जाता ही नहीं है। जबकि मैं तो नीचे से टेम्परेचर कंटिन्यूअसली दे रहा हूं, है ना? यानी किसी भी सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इनिशियली वी कीप ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कीप ऑन इंक्रीजिंग इनिशियली, है ना? टेम्परेचर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, लेकिन जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है, ठीक है, as soon as you get the melting point of solid, उस melting point पे जो भी solid है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब तक वो solid टोटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक आपका melting point चेंज नहीं होता, वो फिक्स हो जाता है। जबकि टेम्परेचर तो आप नीचे से कंटिन्यूअसली दे ही रहे हो ना सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो जो एक्सेस ऑफ टेम्परेचर है वो गया कहां? वो जो एक्सेस ऑफ टेम्परेचर है वो कहां गया? बिकॉज़ जैसे जैसे आपने शुरू में टेम्परेचर दिया तो देखो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे मेल्टिंग पॉइंट आ गया टेम्परेचर फिक्स हो गया, अब वो आगे नहीं जा रहा है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो फिक्स हो गया। लेकिन आपने तो नीचे से इंक्रीज तो कर ही रहे हो ना टेम्परेचर को, तो वो गया कहां टेम्परेचर? सो दैट टेम्परेचर इज जो आपने हीट प्रोवाइड की, ठीक है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ fusion, sorry, that is known as latent heat of fusion। यानी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, यू इंक्रीज द टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ हीट, हम हीट देते हैं जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। सो ड्यू टू दैट हीट टेम्परेचर कीप ऑन इंक्रीजिंग इनिशियली, धीरे धीरे वो बढ़ता है, लेकिन जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट। बट आपने हीट तो देना बंद नहीं किया, आप तो अभी भी कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हो, सो दैट मींस वो हीट क्या करेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। लेकिन एज आई साइड ना, जैसे मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो वो हीट गई कहां? आपने जो एक्स्ट्रा हीट दी वो गई कहां? सो दैट हीट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मींस बॉन्ड तोड़ना, फ्यूजन का मतलब है बॉन्ड को तोड़ना, बिकॉज़ हम सॉलिड को लिक्विड बना रहे हैं ना, तो सॉलिड तब तक लिक्विड नहीं बनेगा जब तक हम उसकी बॉन्ड को तोड़ते नहीं हैं। And that breaking of bond is done by the help of latent heat of fusion. When you provide the extra heat to the system, whatever the extra heat provided is getting converted into latent heat of fusion. That latent heat of fusion then break the bonds which are there in solid, okay, at this melting point, and your solid is being converted into a liquid. Okay, यानी इसमें देखो सिस्टम काम कैसे कर रहा है, वापस समझो आप एक तरह से। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो हीट प्रोवाइड करके, बिकॉज़ टेम्परेचर को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? बाय अप्लाइंग द हीट। as soon as you apply the heat to the system which is solid system, initially your temperature keep on increasing, ठीक है, ठीक है। as soon as you got the melting point of solid, that temperature now become constant even though you are giving the heat to the system, but whatever the extra heat provided by you to the system is being converted into latent heat of fusion,
किस में कन्वर्ट हो जाती है? latent heat of fusion. Now this latent heat of fusion start breaking the bond which is there between the solid particles. Solid particles के बीच में जो भी bond है उसे तोड़ना शुरू करेगी कौन? latent heat of fusion. And as soon as that take place, your solid is getting converted into liquid at that melting point. ठीक है? That means जैसे आप आइस की बात करो तो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप जो भी हीट दोगे that heat is going to be latent heat of fusion and that latent heat of fusion will melt the ice into the water. वो आइस को मेल्ट करके क्या बना देगी? वाटर. पता चल गया? ओके. नाउ नेक्स्ट. अब नेक्स्ट की बात करें so that is the first part, that is solid to liquid. Now we are talking about liquid to gas. ठीक है? जिस ऐसे solid को liquid बनाने के लिए we need a melting point. In the same way, to convert a liquid into a gas, we need a boiling point. हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? Boiling point की जरूरत पड़ेगी. ठीक है? जिस तरह से किसी कोई भी सॉलिड उसके मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू हो जाता है, उसी तरह से एनी लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ गैस. So first of all we need to understand the definition of boiling point. So what is boiling point? The temperature at which your liquid evaporates at atmospheric pressure is known as boiling point. Again, the temperature at which your liquid start evaporating at atmospheric pressure is known as boiling point. देखो atmospheric pressure दोनों में आया, यहाँ भी atmospheric pressure बढ़ाया था, यहाँ भी atmospheric pressure बढ़ाया था. क्यों? Because atmospheric pressure fix होता है, वो कभी change नहीं होता. It's a pressure of atmosphere on our body. जो एटमॉस्फेयर होता है, इतना बड़ा स्काई दिख रहा है ना, वो हमारे ऊपर जो प्रेशर डालता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो हमेशा 1 एटमॉस्फेयर ही होता है, वो कभी चेंज नहीं होता. सो एज आई सेड, भी हम टेंपरेचर चेंज कर रहे हैं, सो वी नीड टू कीप आवर प्रेशर कांस्टेंट. इसलिए हमने कौन सा प्रेशर ले लिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कांस्टेंट है. तो जैसे आप टेंपरेचर दोगे इन द अमाउंट ऑफ हीट, तो जैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, योर लिक्विड विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू अ गैस. याद रहेगा, किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव दिस बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है? पता चल गया? अब देखो, जैसे इसमें हुआ था, मैंने क्या कहा था कि इनिशियली टेंपरेचर धीरे-धीरे इंक्रीज होगा, फिर जैसे मेल्टिंग पॉइंट आएगा टेंपरेचर कांस्टेंट हो जाएगा, इवन दो आप हीट दे रहे हो. तो सेम चीज यहां भी होने वाली है. ठीक है? जब आप किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, इनिशियली आप यू हैव टू गिव द टेंपरेचर, यू हैव टू इंक्रीज द टेंपरेचर बाय गिविंग द हीट टू द सिस्टम. लेकिन जैसे जैसे हीट सिस्टम के अंदर जाएगी, टेंपरेचर विल कीप ऑन राइजिंग स्लोली एंड स्टेडीली. लेकिन जैसे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, जैसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, योर लिक्विड टेंपरेचर नाउ विल रिमेन कांस्टेंट. अब जो भी बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, वो कांस्टेंट हो जाएगा. इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट. But whatever the amount of heat is being provided by you to the liquid system, that heat will be used up to break the bond between the particles of liquid. ठीक है? And as soon as that take place, whatever the liquid is there, it is getting converted into a gaseous form. Okay? पता चल रहा है? Okay? अब देखो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. Let's take the example. So example is liquid water is getting converted into a gaseous steam. That is nothing but water vapor. इसकी बात कर रहा हूं. ठीक है? क्या? Now liquid water is getting converted into a gaseous stream, that is water vapor. तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लिक्विड वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, so boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? दैट मींस घर में जब आप एक वेसल लो, उसमें पानी डालो, ठीक है, अब उसको गैस बर्नर के ऊपर रख दो. जैसे आप गैस बर्नर ऑन करोगे, ऑब्वियसली गैस से क्या मिलेगी? हीट.
नाउ दैट हीट कहां जाएगी वेसल के अंदर, सो दैट मींस अब वेसल का जो टेंपरेचर वो धीरे-धीरे इंक्रीज होगा 0 to 1 डिग्री, 1 डिग्री to 10 डिग्री, 10 डिग्री to 30 डिग्री, और ऐसे होते-होते वो कौन से डिग्री पे पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपने देखा होगा जैसे टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, व्हाटएवर द वाटर व्हिच इज देयर इन द वेसल इट स्टार्ट बॉइलिंग, ऐसे उबलता है, उबलने लगता है। दैट मींस व्हाट कि आपने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपने गैस नीचे बंद किया नहीं, गैस तो चालू है। दैट मींस अभी भी तो हीट आप दे रहे हो, लेकिन टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा ही नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज़ अब व्हाटएवर एक्स्ट्रा हीट इज प्रोवाइडेड बाय यू टू द लिक्विड वाटर सिस्टम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू latent heat of vaporization। क्या कहा जाता है उसे? latent heat of vaporization, यानी आप, ठीक है, सो दैट इज latent heat of vaporization। यानी जब आप किसी भी वाटर को बॉईल करते हो तो इनिशियली तो टेंपरेचर इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा उसके बाद ही लिक्विड वाटर गैसियस स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब तक पूरा का पूरा लिक्विड वाटर गैसियस स्ट्रीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन हमने तो नीचे तो गैस बर्नर ऑन ही रखा है, तो जो एक्स्ट्रा हीट मिल रही है सिस्टम को वो गई कहां? तो व्हाटएवर द एक्स्ट्रा हीट इज देयर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू latent heat of vaporization। Now this latent heat of vaporization will help the liquid particles to get break, and as soon as that take place your liquid water is being converted into a water vapor। पता चल गया? यानी खाली टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैटर चेंज नहीं होते। पहले हमें सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए टेम्परेचर को कहां तक ले जाना पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट तक। कहां तक ले जाना पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट तक। फिर जैसे मेल्टिंग पॉइंट आएगा फिर भी आपको एक्स्ट्रा हीट देनी है। अब वो एक्स्ट्रा हीट क्या हो जाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बन जाएगी, और जैसे वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब सॉलिड पार्टिकल्स की बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगी सॉलिड क्या बन जाएगा? लिक्विड। सिमिलरली लिक्विड और गैस वाले सिस्टम में क्या होगा? आपको इनिशियली टेंपरेचर देना है, जैसे जैसे टेंपरेचर दोगे टेंपरेचर को कहां तक ले जाना है? बॉइलिंग पॉइंट तक। जैसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा आपको हीट एनर्जी कंटीन्यूअसली देनी ही है। अब वो बॉइलिंग पॉइंट पे टेंपरेचर कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी दोगे दैट एक्स्ट्रा हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू latent heat of vaporization। Now this latent heat of vaporization break the bond between the liquid particles, and as soon as that bond break your liquid is getting converted into a gas। Okay, got the topics? So this way we can change a state of matter from solid to liquid and liquid to gas by increasing the temperature, but for the whole process you have to keep your pressure constant। Okay, so I hope you got this I hope you got this topic। Okay, it is all about changing one state of matter into another one, which can be accomplished by changing the temperature, that by increasing the temperature, but you have to keep your pressure constant। Okay, that's all for today। Okay, we will see you in our next lecture। Okay, take care, bye bye।